So good morning once again, everyone. We are on chapter number 4 of history, the creation of an empire. So yesterday we read about how the Babur attacked India and defeated many rulers to establish his control over Delhi. Now we will read about Humayun and some more rulers. So Humayun from 1530 to 1540. This is This was his ruling period. Then he also ruled between 1555 to 56. Now Babur was succeeded by his eldest son Humayun. He had to deal with many problems. The first problem area was the confused state of the administration. So during when Humayun took control over the throne, there were many problems being faced by the administration or the area under his control. Administration was totally shattered. Okay, there was not a strong administration or it was not well organized. The Afghans had been weakened, but they still cherished the ambition of setting up their independent principalities. Okay, so the Afghans, that means Ibrahim Lodi, who were team of Ibrahim Lodi, who were defeated. They were defeated, they were weakened, but they were there as a threat. Okay, so this was also a problem for Humayun. So those rulers, those Afghans who left over here, they had established their independent small principalities. Humayun's half brothers also posed serious threat as they were always on the lookout for an opportunity to strike out on their own. Finally, there was Bahadur Shah, the ruler of Gujarat, who had control over the Malwa region and wanted to extend his dominance over Rajasthan as well. Okay, so his brothers were also a threat to his administration, threat to his kingdom, threat to his power. They also wanted to extend their own territories. Okay, now Humayun, following the Turco-Mughal practice, divided the empire among his brothers. So he divided the empire among his brothers. Let's see. So, for example, if we think this was the empire led by Humayun, okay, ये मान लो कि हुमायूं इसका राजा है, तो वो दिल्ली से कंट्रोल कर रहा है बहुत बड़े इलाके को, साथ में वो सारे के सारे एरियाज़ को भी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसने कुछ एरियाज़ इंडिपेंडेंट कंट्रोल में अपने ब्रदर्स को भी दे दिए हैं. फॉर एग्जांपल दिस एरिया one brother this to one and this to another. In this way, he divided his empire among his brothers. However, they remained dissatisfied with their portions. तो उनको जो पोर्शन मिले, उसके ब्रदर को जो भी किंगडम में से कुछ स्मॉल स्मॉल पोर्शन मिले, तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, वो चाहते थे उसको इंक्रीज करना. ओके, one of his brothers, Kamran, who had received Kabul and Badakhshan, forcibly seized Lahore. उसका एक ब्रदर था कामरान, किसका? हुमायूं का. उसको कौन सा इलाका मिला था? काबुल एंड बदख्शां. बट उसने उसके साथ लगता है कि इलाका लाहौर, उसको भी अपने फोर्सिबली जबरदस्ती उसको अपने कब्जे में ले लिया. ओके, देन ही सेंट एन एमिशरी टू हुमायूं who graciously confirmed his position. हुमायूं को भी उसके इस जो फैसला है कब्जे को मानना पड़ा. ओके, because at that time his position was not very strong.
हुमायूं then turned his attention to the Afghan rebels. फिर उसने जो अफगान रेबल्स थे, जो बचे हुए थे अफगान, उनकी तरफ ध्यान किया. However, even before he could take any step against them, he received the alarming news that Bahadur Shah of Gujarat had conquered Malwa. बहादुर शाह जो कि गुजरात का रूलर था, उसने मालवा को कॉन्कर कर लिया. बहादुर शाह वॉज ऑल्सो मूविंग टुवार्ड्स मुगल फ्रंटियर्स, और फिर बहादुर शाह तेजी से मुगल फ्रंटियर्स की तरफ बढ़ने लगा. दिस फोर्स्ड हुमायूं टू एंटर इनटू अ ट्रीटी विद अफगान. ट्रीटी क्या होता है? कोई समझौता या सेटलमेंट, जब दो पार्टीज के बीच में किसी एक बात को लेके फैसला हो जाता है, कोई मान लेता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रीटी. ठीक है, कुछ बातें हम उनकी मानते हैं, कुछ अपनी मनवाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रीटी. सो एक वर्ड, अ ट्रीटी अलाउड शेर खान सूरी टू गेन. दिस फोर्स हुमायूं टू एंटर इनटू अ ट्रीटी विद द अफगान शेर खान सूरी. तो एक अफगान रूलर था शेर खान सूरी, बाद में जिसका नाम शेर शाह सूरी भी पड़ा. इसके साथ हुमायूं ने एक ट्रीटी की, सूरी टू गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर बनारस, और उसको पूरा कंट्रोल बनारस का दे दिया. किसको? शेर शाह सूरी को. ओके, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर बाद में साबित होगा. कौन? शेर शाह सूरी. और एक बहुत ही कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर होगा ये. और हमारे लिए ये एक बात है कि याद रखने की बात है कि जो शेर शाह सूरी है, उसका जन्म होशियारपुर में हुआ था. The next 2 years Humayun spent in his fruitless Gujarat expeditions. फ्रूटलेस का मतलब है जिसका कोई फायदा नहीं हुआ. गुजरात एक्सपीडिशन मीन गुजरात के ऊपर उसने कुछ आक्रमण किए. किसके खिलाफ? इसके खिलाफ, बहादुर शाह के खिलाफ. ओके, लेकिन उसमें उसको कोई जीत नहीं मिली. इन 1539 शेर खान सूरी डिफीटेड हुमायूं. शेर खान सूरी ने 1539 में हुमायूं को डिफीट कर दिया एट द बैटल ऑफ चौसा. चौसा की बैटल में उसने इसको डिफीट किया, शेर खान सूरी ने. ओके, उसके बाद वो क्या बन गया? लेटर इन 1540 द बैटल ऑफ कन्नौज. एक बार चौसा में, एक बार कन्नौज की लड़ाई में उसने हुमायूं को हराया. हुमायूं fled to Sindh and then to Persia where he took refugee with the king of Persia. ये क्या हो गया? पर्शिया भाग गया हुमायूं, और फिर यहाँ का राजा कौन बन गया? शेर खान सूरी. Here in this picture it is shown, you can see a rifle. A rifleman is there, he is carrying a rifle. द जम्बूरक और कैमल गन, इसको जम्बूरक भी बोलते हैं या कैमल गन बोलते हैं. वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम पर्शिया. ये पर्शिया से इंडिया में आई थी ये वाली गन, कैमल गन या फिर जम्बूरक, एज अ मेजर वेपन ऑफ द मुगल एम्पायर. एंड दिस वन वाज वन ऑफ द मेजर वेपन्स ऑफ हुमायूं. मुगल एम्पायर और हुमायूं का ये एक मेजर वेपन था, एक स्पेशल तरह की गन थी जो कि स्पेशली कहाँ बनती थी? इन पर्शिया. अफगान इंटरल्यूड. इंटरल्यूड का मतलब होता है जो बीच में एक पीरियड आता है. सो अफगान रूल एक बार आया. शेर खान सूरी ने 1540 से लेकर 1555 तक, मीन्स अबाउट 15 ईयर्स, 15 साल तक शेर शाह सूरी ने जो है राज किया इंडिया में. सो आफ्टर द डिसीजिव विक्ट्री ऑफ एट कन्नौज, शेर खान सूरी chased हुमायूं out of the country and established the second Afghan rule in Delhi. During his childhood, his father was posted in Bihar. His father was given the Jagir of 3 villages, that is
Passport, Sasaram and Hajipur. Sher Khan managed to manage the affairs of his father's estate for 21 years. So उसके जो फादर थे, ठीक है, वो एक जागीरदार थे, 3 विलेजेस थे उनके पास। वो अपनी एस्टेट, जो उसके फादर का जो इलाका था, एस्टेट था, एम्पायर था छोटा सा, उसको उन्होंने 21 ईयर्स तक मैनेज किया। आफ्टर द फॉल ऑफ द लोधीज, बिहार केम टू बी रूल्ड बाय बहर खान लोहानी। जब लोधीज का राज चला गया इब्राहिम लोधी की डिफीट के बाद, बिहार का जो चार्ज है, जब बिहार के ऊपर कौन रूल करने लगा? बहर खान लोहानी। एंड ये टुक अप द टाइटल ऑफ he took up the title of Sultan Muhammad Shah. When he died, Sher Khan was appointed as the deputy governor of Bihar by the widowed queen. तो उनके डिफीट उसके बाद क्या होता है कि शेर खान सूरी को मौका मिलता है डेप्टी गवर्नर बनने का, और आखिर में जब क्वीन की डेथ हो जाती है तो शेर खान सूरी खुद क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं। ओके, सो इन दिस वे शेर खान सूरी बिकेम द रूलर ऑफ Bihar, and later on he defeated Humayun to become the ruler of India.